Hello guys, I am Hitesh Tripathi and I am your instructor via Newton School, and in this video, that is day 5 of this playlist, dynamic programming, we are going to see a very famous problem, okay, and kind of a standard problem, that is subset sum problem. ठीक है, और इसको भी आप कह सकते हो कि ये knapsack प्रॉब्लम का वेरिएशन है. ओके, सो सबसेट सम प्रॉब्लम हम देखने वाले हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट्स जस्ट सी व्हाट इज न्यूटन स्कूल. So basically Newton School is an e-learning platform which provides you different services. Like first thing they provide you is placement trainings. Okay, so what they do is they will teach you for 6 months front-end development, back-end development, and after teaching you for 6 months they will make you a full stack developer. Not only this, after that they will also get you placed in these companies like Topper, 7-Eleven, Rapido, Motorola, Meesho, Deloitte. So they have tie-up with almost 300 companies of India. So firstly they will make you a full stack developer and then they will get you placed in these companies. To know more about this program, you can just come to newtonschool.co and you can check their pay after placement program. Most amazing thing about this program is you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in any company. Okay, and minimum CTC which they try to provide you is 5 lakhs, so it is also a good thing. So again, if you want to know more about this, just come to newtonschool.co and check their pay after placement program. Second initiative they have for you is Launchpad initiative. Okay, so if you want to start for free, like if you want to learn anything, any new tech, and you don't want to pay for it, just come to Launchpad initiative of Newton School. Sign up for free. You can opt any of the courses which they have for you for almost for everything in computer science. You can just start and complete your course, and after completion you will also get certificate of completion. You can also perform quizzes here. Okay, you have assignments there, and you can use Newton School IDE for coding part also. So it is a complete platform for you, and everything here is for free under Launchpad initiative. Third and most amazing thing these days Newton School have for you is Newton School MS degree program, that is master's degree in computer science. So if you are a working professional, or if you are anyone like who wants to do his or her master's degree from abroad, so Newton School has their master's degree program under which they have tie up with MIA Digital University of Spain. Okay, so you will get trained for complete 1 year from this MIA Digital University, and after that only you will get your master's degree in computer science from them. And if you want to know more about this master's degree program, you can just go to the link in description, that is bit.ly hitesh15, and you will easily get everything about it. Or you can also ask me in comment section. I will provide you necessary things about this master's degree program. Last thing is, if you haven't subscribed this YouTube channel, that is Code Kitchen Newton School, just go and subscribe this channel. I am posting videos regularly on regular basis, so that we can learn whatever we are reading right now, like so that there is a momentum in the learning process. Okay, so just go and subscribe this, and there are different playlists for you, like for data structures and algorithms, for programming language, for JavaScript, and for dynamic programming also. So now let's just start with today's video, and in today's video we are going to see subset sum problem. ठीक है, so सबसे पहले हम देखते हैं what is subset sum problem. होती क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए. ठीक है, तो मैं इजी वर्ड्स में बताता हूं. होता क्या है, वी हैव अ सम. ठीक है, हमें एक सम गिवन है, गिवन सम, एंड वी हैव अ एरे. ठीक है, हमें ये बताना है कि इस एरे में कोई भी ऐसा क्या सबसेट है जिसको ऐड करके हम ये सम क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, वी जस्ट हैव टू टेल ट्रू और फॉल्स. ये कंप्लीट स्टेटमेंट था. ठीक है, गिवन एन एरे, फाइंड इफ देयर एग्जिस्ट अ सबसेट विद गिवन सम और नॉट. ठीक है, तो हमें अगर गिवन सम का एग्जिस्ट करता है सबसेट तो ट्रू देना, अदरवाइज फॉल्स. ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी. अब जैसा कि अभी तक हमने नैपसैक में सारी चीजें पढ़ ली हैं. ठीक है, ऑलमोस्ट सब सारे टाइप्स के नैपसैक्स पढ़ लिए, फ्रैक्शनल, 0-1 और अनबाउंडेड, उसके रिकर्सिव और डीपी के कोड देख लिए. ठीक है, हमने हर चीज देखी कि कैसे रिकर्जन लिखना है, कैसे उसको डीपी में मेमोजाइज करना है, या फिर तुम्हें टॉप डाउन अप्रोच लिखनी है. ठीक है, सारी चीजें देखी हमने. अब हम बोल रहे हैं कि ये जो सबसेट सम प्रॉब्लम है, ये भी क्या है, एक नैपसैक का वेरिएशन है.
ठीक है। सपोज तुम्हें ये सबसेट सम प्रॉब्लम गिवन थी, ठीक है, और ये तुमने ये पता लगा लिया कि ये डीपी का सॉल्यूशन है, ठीक है। क्यों डीपी का सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि तुम्हारे पास है क्या, तुम्हारे पास एक गिवन है, ठीक है, और तुम्हें करंट एलिमेंट को क्या करना है, चॉइस करनी है ऑब्वियसली, ठीक है, कि तुम इसको करंट जो तुम्हारा सम है, दैट इज यू आर मेकिंग, जो तुम्हारा सम है उस सम में इस करंट एलिमेंट को तुम इंक्लूड करोगे आयत को या नहीं, ठीक है। तो चॉइस है तुम्हारे पास, और चॉइस है और तुम्हें एक मतलब पर्टिकुलर वैल्यू क्रिएट करनी है कि नहीं, तो तुम्हारे पास हर एलिमेंट में कुछ ना कुछ चॉइस है, ठीक है। तो यू हैव टू, इसका रिकर्जन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि तुम सारी पॉसिबिलिटीज बना के देख लो, ठीक है, बट ऑब्वियसली दैट विल बी टू कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। दैट्स व्हाई वी विल गो फॉर डीपी अप्रोच। हम इसमें डीपी अप्रोच यूज करेंगे, जिसमें हम रिकर्जन में कुछ स्टेप्स मेमोराइज कर लेंगे, जिससे हमें वो चीज बार बार ना निकालनी पड़े। फाइन, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे डीपी यूज करेंगे। यहां तक हमने समझ लिया। अब हम इसको, सबसे पहले मैंने बताया था कि हम डीपी का कोई भी क्वेश्चन अप्रोच करते हैं तो उसको किया क्या करो, तुम्हें किसी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम जो तुमने पहले पढ़ रखी है उनसे रिलेट करने की कोशिश करो। तो सबसेट सम प्रॉब्लम, लाइक मैंने पहले ऑलरेडी लिख दिया कि ये नैपसैक का वेरिएशन। अब ये नैपसैक से वेरिएशन कैसे है ये देखते हैं, ठीक है। नैपसैक करेंटली होता क्या था हमारा, नैपसैक इजीली देखूं मैं तो हमारे पास क्या था, एक नैपसैक था जिसकी कुछ एक लिमिट थी और हमें वैल्यू ऑफ आइटम्स मैक्सिमाइज करनी थी, है ना। नैपसैक क्या था, हमारे पास एक बैग था, उसकी कोई लिमिट थी, ठीक है, और हमें वैल्यू ऑफ आइटम मैक्सिमाइज करनी थी, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि नैपसैक है मेरा, ठीक है, और ये चीज जो है मेरी ये सम है, ठीक है, और मुझे मैक्सिमाइजेशन की जगह बस इतना चेक करना है कि मैं ये सम क्रिएट कर सकता हूं या नहीं। इट मीन्स कि मैं इन सारे एलिमेंट्स को यूज करके इस नैपसैक को फुल कर सकता हूं या नहीं, ठीक है। तो अभी तक मैं क्या कर रहा था, मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा था। अब मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि मैं इस नैपसैक को फुल कर सकता हूं या नहीं, ठीक है। अगर नहीं कर सकता देन माय सिंपली आंसर विल बी फॉल्स, अदरवाइज मैं ट्रू दूंगा, ठीक है। मुझे ये नहीं बताना कि मुझे कौन कौन से एलिमेंट्स फिल करने हैं, वो चीज बाद में आएगी अभी, ठीक है। तो अभी मुझे ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है। सो इन दिस वे यू कैन से कि ये भी मेरा एक नैपसैक का वेरिएशन है, जहां पे मुझे क्या करना है, सिंपली मैक्सिमाइज करने की जगह चेक करना है कि मैं उस करंट लिमिट को क्रिएट कर सकता हूं या नहीं यूजिंग एलिमेंट्स ऑफ एरे, ठीक है। फाइन, तो अगर मैं इस प्रॉब्लम का चॉइस डायग्राम जैसा कुछ बनाऊं तो वो ऑलमोस्ट सेम एज नैपसैक बनेगा, बट उसमें जो मैक्सिमाइज वाला स्टेप होता था वो हट जाएगा, ठीक है। तो मैं बनाता हूं, ठीक है। सपोज करंट एलिमेंट है मेरा, दैट इज सी ऑफ आई या फिर ए ऑफ आई, करंट एलिमेंट, ठीक है। दो पॉसिबल चॉइसेस हैं, करंट एलिमेंट को इंक्लूड करना है या फिर एक्सक्लूड करना है ना। अगर इंक्लूड कर सकते, करंट एलिमेंट को इंक्लूड कर सकते हैं या फिर एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम सिर्फ चेक कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे, ऑब्वियसली जो हमारा सम हम जो क्रिएट कर रहे हैं, अगर उससे करंट एलिमेंट जो है उसकी वैल्यू बड़ी है ए ऑफ आई की, तो हम उस एलिमेंट को यूज करके कभी सम क्रिएट नहीं कर सकते। इट मीन्स वी हैव, हम उसको इंक्लूड कर ही नहीं सकते, दिस वाली थिंग, ठीक है। अगर इंक्लूड कर सकते हैं देन देयर विल बी टू थिंग्स, इंक्लूड कर रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है। फाइन, तो ऑलमोस्ट ये हमारा चॉइस डायग्राम था, यू कैन से, ठीक है। अब हम इसका काइंड ऑफ रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक। रिकर्सिव से फिर हम उसको इजीली क्या कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे, ठीक है। और हम उसका डीपी का टॉप डाउन अप्रोच भी देख लेंगे इसी वीडियो में, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। तो सपोज मैं अब रिकर्जन सॉल्यूशन लिख रहा हूँ इसका, ठीक है। स्पेलिंग में मत जाना तुम लोग, फंक्शन लिखते हैं हम। फंक्शन में हमारे पास इनपुट में क्या क्या आएगा ये देख लेते हैं। तो हमारे पास सिंपली सबसे पहली चीज़ क्या आएगी, सम जो हम क्रिएट कर रहे हैं, फिर एक एरे आएगी और एरे में नंबर ऑफ आइटम्स आएंगे n, ठीक है। बेस केस सर्च करो रिकर्जन का, बेस केस तुम अगर देखो तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है, जो भी इनपुट है हमारे एरे में उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू डालो जो तुम डाल सकते हो, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। फर्स्ट स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू सम की हो सकती है, दैट इज 0। अगर हम सम 0 क्रिएट कर रहे हैं तो हमें सिंपली आंसर क्या देना है, रिटर्न ट्रू। ट्रू को मैं टी लिख रहा हूं, ठीक है। तो सिंपली यहां पे लिख दो इफ सम इज 0 वी कैन रिटर्न ट्रू ऑलवेज, क्योंकि हम सम 0 तो हमेशा क्रिएट कर ही सकते हैं, ठीक है। फाइन, सेकेंड बेस केस कैन बी नंबर ऑफ आइटम्स 0।
अगर नंबर ऑफ आइटम 0 है, क्या हम सम क्रिएट कर सकते हैं? फॉल्स। इस केस में हमेशा हमें क्या रिटर्न करना है? फॉल्स। क्योंकि हम कोई भी सम हो, नंबर ऑफ आइटम्स ही नहीं है, हमारे पास कोई आइटम ही नहीं है एरे में, तो हम कैसे वो सम क्रिएट कर पाएंगे? ठीक है, दो बेस केस हो गए। अब सिंपली हमें इंक्लूड एक्सक्लूड वाली कंडीशन देखनी है। तो एक्सक्लूड की कंडीशन हम पहले लिख देते हैं। इफ जो हमारा एरे ऑफ आई है, ठीक है, करेंट एलिमेंट जो है, यू कैन से, ठीक है, अगर वो करेंट एलिमेंट जो है वो तुम्हारा एरे ऑफ एन, यहां पे तुम कहोगे, है ना, एरे ऑफ एन माइनस वन, इंडेक्सिंग की वजह से। तुम इस चीज को बाद में अपने कोड में सही कर लेना, मैं सूडो कोड लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो एरे ऑफ एन जो है करेंट एलिमेंट, वो अगर हम, मेरा क्या है, जो मेरा सम नीडेड है उससे भी बड़ा है, तो मुझे सिंपली क्या करना है, फंक्शन में रिटर्न करना है। मैं इस एलिमेंट को एक्सक्लूड कर दिया मैंने, करेंट एलिमेंट को एक्सक्लूड करने के बाद मेरा क्या बचेगा, सम में कोई चेंज आएगा नहीं, एरे भी मेरी सेम रहेगी, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, एक से डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि अब मुझे करेंट एलिमेंट को कंसीडर नहीं करना। ओके, सिंपल सी चीज। एल्स में मुझे क्या करना है, दो पॉसिबिलिटीज लेनी है। अगर मैं वो वाला डायग्राम बनाऊं, चॉइस केस डायग्राम, तो इंक्लूड कर सकते हैं। अब हमें एल्स में ये डालना है, ठीक है, और इसमें हमें दो पॉसिबिलिटीज लिखनी थी, इंक्लूड कर रहे हैं या नहीं। तो हम पहली पॉसिबिलिटी लिखते हैं, इंक्लूड कर रहे हैं हम जब, ठीक है, तो वो रिकर्जन फंक्शन क्या होगा, इंक्लूड कर लिया हमने करंट एलिमेंट को, तो सम अब हमारा कितना बचा, सम माइनस एरे ऑफ एन, एरे सेम, नंबर ऑफ आइटम्स एन माइनस वन, ठीक है। और दूसरा केस भी हम लिख लेते हैं यहीं पे, फन, इंक्लूड नहीं किया जब हमने, तो सम सेम रहेगा, एरे भी सेम रहेगी, और नंबर ऑफ आइटम्स वन से डिक्रीज हो जाएंगे। अब ये दोनों केस तो हमने लिख लिए, इन दोनों का हमें करना क्या है, इन दोनों का हम और लेंगे। क्यों? क्योंकि सपोज जो मेरा सम है वो इसको लेके भी बन सकता है और इसको लेके भी बन सकता है। इजी सी चीज बोल रहा हूं, ठीक है। मेरा सम हो सकता है कि मेरा सम जो है, जो मैं बना रहा हूं, वो करंट एलिमेंट को इंक्लूड करके बन जाए, या फिर करंट एलिमेंट को एक्सक्लूड करके बन जाए। मुझे तो मेरा मेन एम क्या है, सम बनाना, वो ऐसे बन रहा है या ऐसे बन रहा है, डजेंट मैटर, ठीक है। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन और हियर, ठीक है। तो यहाँ पे और लिख लो, फाइन। तो ये मेरा रिकर्जन का कोड था। मैं इसको अगर सिंपल सी तुम्हें कोड दिखा दूं अगर इसका, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा रिकर्जन का कोड आ गया यहाँ पे, ठीक है। एंड यू कैन इजिली सी दिस। ये मेरे दो बेस केसेस हो गए। अगर मेरा जो करंट आइटम है वो अगर सम से बड़ा है, तो मुझे उसे एक्सक्लूड कर देना है सिंपली, और एरे n-1 और सम पास कर दिया। एल्स में मुझे क्या करना है, दोनों पॉसिबल कंडीशंस का और ले लेना है, ठीक है, फाइन। और सम मेरा कैसे रिड्यूस हो जाएगा, करंट एलिमेंट से। अब मुझे इसको मेमोजाइज करना है। सिंपल सी चीज, मैंने तुम्हें 2-3 स्टेप बताए थे। अपनी डीपी एरे बनाओगे कितने की, वेरिएबल इनपुट्स देखो कौन कौन से, n+1, sum+1, ठीक है, फाइन। और इसको तुम किससे, कोई भी अनएक्सपेक्टेड आउटपुट, जो तुम्हारा आउटपुट कभी आ नहीं सकता, ठीक है, तुम्हें उससे पूरी डीपी एरे को फिल कर देना है। तो तुम सिंपली क्या करोगे, मैं ऐसे करता हूं, या फिर यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक मेमसेट का यूज कर लो ना, इतना बड़ा हम क्यों लिखेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। ठीक है, मैंने डीपी एरे को इनिशियलाइज कर दिया। अब हम करंट स्टेट के लिए सबसे पहले क्या चेक करते थे, इफ जो हमारी डीपी एरे n एंड सम डज नॉट इज इक्वल्स टू -1, तो हमें सिंपली क्या रिटर्न कर देना है, वही वैल्यू। मेमोजाइज में कैसे मेमोजाइज करते हैं ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो ऑब्वियसली प्री रिक्विजिट्स है वो सारे देख के आओ, फिर ये वीडियो करो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और अगर ऑब्वियसली ऐसा कुछ है तो तुम क्या करते थे, सब चीज की वैल्यू तुम्हें स्टोर करनी है, तो सिंपली वो याद रखो, ठीक है। तुम्हें हर चीज की वैल्यू बस स्टोर करनी है, तो स्टोर भी करते जाओ और रिटर्न भी करते जाओ। जो भी इंडेक्सिंग की चीजें हैं ना, जो n और n-1 है, तो ये सब तुम लोग देख लेना, मैं वो यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैं काइंड ऑफ सूडो कोड लिख रहा हूं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा n-1, क्योंकि तुम किसकी वैल्यू निकाल रहे हो,
जिस चीज की वैल्यू निकाल रहे हो तुम्हें उसी चीज में स्टोर करना है ना। ठीक है, तो ये मैंने मेमोजेशन का कोड लिख दिया सिंपली। और इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, और इंडेक्सिंग का तुम लोग देख लेना, वो n-1 और n का मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं यहाँ पे, तो उसके लिए कमेंट में आप कोई भी डाउट है तो आप इजीली पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, फाइन। अब इस चीज का जो तुम्हारा असाइनमेंट है, अगर तुम्हें इसका टॉप डाउन अप्रोच का कोड लिखना है तो लिख के देखो, कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, अगर डाउट आता है तो आई विल डिस्कस मेमोजाइजेशन कोड ऑफ आई विल डिस्कस टॉप डाउन कोड ऑफ सबसेट सम प्रॉब्लम इन जस्ट नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में शुरुआत में 2 मिनट में इसका टॉप डाउन कोड का अप्रोच बताऊंगा, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो जस्ट सी दैट वीडियो। ठीक है, thank you guys for watching this video. Again, if you have any doubt you can just ask in comment section anyways, anytime. ठीक है, and if you haven't visited Newton School, just go and check their pay after placement program, Launchpad initiative and Newton School Masters Degree program. And for Masters Degree program you can just go to the link in description, that is bit.ly Hitesh15. And again, if you haven't subscribed this YouTube channel, that is Code Kitchen Newton School, just go and subscribe this channel. Thank you guys for watching.